अरुणाचल प्रदेश का फ्यूचर एमपी डॉक्टर मैडम चीफ मिनिस्टर बनवाला Mulu tak pelo GSP presiden ham saga toko sital me hai karena mana kan sol pengbina mamai. Kalau ga mulu ni sebasi a presiden pengina amina mo cem mo bokar bo mo bim pasin mo ai muni abang mo bige cem mo ka bige lo. Ram sinai ka nalo pengjen ka bangai tina solo aloi tanaga ga ongelo. Toko sital me support ke pengminda nam hai ka tanaka. Ologa dono punam, dono la pono mobin punam, gama gedengam, ologa sol nale idum padumlo ajigo volunteer punam gedengam aikat na ologa wajah ben sedamo indi gonu ben cen momono jita la bikai. Wa menaka ologa ananya mengangun toko sital me hame sa mobil ijen na gedenga Delhi alo alaningi alonga Delhi al karta kana mam kabanga menno bitula sincenda nyema sincendai. Abi ke ngunu ga mane gang kolor na sin develop mo ko mane gang sol chang bi na mamai menno sin ayang bi ka ngo sin la pada hai ka na ologa sekade empia kayung sin iba cekadana iron de jusi sin ibang ge minister to pandanai. Abi ke longa na yakin di det onam nyama go pa ka nyama on sumun ayang bi long juga bi lo namo to ko sin namo Pindah dono ga ananya mga puna sin tingelo ayane duka ananya mga mulo ayane jumi turasin na yakin di dadam kone kuju purana ngul kung krapa ko deblogam ikrapa ko menengam ikrapa ko ay tapi ke na yam singul tinda ko na ya sin la kom ila ay niyo nada tapi ila dono gitu manam pungige la ada inda ko to ka na olo ka apna ngoga saka candidate on to ko sital na mo bendana no on toka jitige no impialo dilian dadam no on toka menaga on yuda bro toka onge pulmuluga ananya manga problem teglib gonya ma teglib dadiam no alsel na kono bo ngunum bembi na bo ajina modo na bo no on yuda bro toka no ngokum dana ka lo no tokge kulonga no mol ananya ma support ge longa anya mang support ya tokge kulono dilian da ge longo mung pongkomo ioka ananya mga si abida ananya mga tergibi dino tu anya mga cenda tu ayaw kaya tergiban kong no iskim lo lo mo lengi kulongga ngulu impop tanam lo rung lo kanong mga danay ologa no ologa top da bolo sinil sinta yo dinong top ya lo benda biya ka bo top ya nak pana benyum namay go bigyan no kusisam ilagi kuli ito kalau abo pang nagadasin laki nam tu pira brune juga tup da namay go development sini ikrapa pa inayam sini ikrapa pa bigyan no nayam kemone juga mangadaga ologa no ya ko la helo ya ko de yetar dun talano kam ya da bro to ka ngom dai lo ngulu mane ga sol sin pung ge kulo di tu taro ga kolor namme ko po mo yin da ko no ru bi lo ka no mo to ko me dam no mo ka na bendana lo ngo benten benen sin mo indi bono ja mo indi ja bakul de jota muta indi ben ro bakul ga tu da ro ke kul tu tak da nai ben na man bin pomo na lo ben na man bin pomo ben da man man bin ko na indiam dung ge be yam ben torok ge be yam ben pomo bin na ka ge lo no solo cha bin na mo lo
Pablo puna dengan sindo ayang geno takin dan noye gi karba kudam no mulu. Jija mosin mi mosin mon kong ngelong kai no mo bela mo langun kong kemo bi pa kuda yu mon kong kemo bi ke anya mon kong lo juga ke mon kong na puna lo no mulu bembi lo ika men dan lo pun jen cha jen gitu men no sin eji eso bembi ka men nangok ka kena ka ma lo ika. दोनों में प्रवीणा का अजी को सका जन पाना का काम और का उपलब्ध कर दें एक काम हम सी तो कमें सामने एक का और का पच्ची के दिन में हम पहुंचे ताये से लोग आए अभी के लोग का सुनने वो बड़ी dan sobat kamu आए वो एक सिंह ऐसा बोकर लेते सिंह मुका अब जाकर वो इतना ही बोलेगा कि तो मैडम अगर यहाँ तक आए तो कुछ ना कुछ सोच के आया होगा अभी ये लोग बैठे हैं अभी ये लोग का सब घूमने बैठे मशीन घूमने बैठे तो मैडम में साथ दिलों का वो तो मैडम में सिनना जे तो वो तो का होगा जे ये लोग मालूम में कुछ चीज जो है प्रॉब्लम भी है होगा कुछ चीज ऐसे भी है कि करप्शन इसके लिए मेन जो है आप जीत के आने से आपको हम बहुत अच्छा वो देखा सकते हैं कि आप कुछ ना कुछ करेगा और थैंक यू वो बड़ी को मांगा करना पाए ऐसे मैंने जिम्मा दिए लोग और पाए ना था अच्छा तो गुड मॉर्निंग मनीगा वो अब तनी बोलेगा तो हम लोग आए बोला तनी को अब तनी भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे थैंक यू वेरी मच मनीगा मैं कभी ना एडवोकेट दिखाता हूँ मैं तनी आवे मैं मिसी आवे मैं कोरी पोकर निवो मिलना वा मैं मिसी मिलना तो होक लगा मैं हिंदी में दे है हेलो मुख्य काम है मेरा जो ड्यूटी है एज ए स्टेट प्रेसिडेंट गन सुरक्षा पार्टी सो गन सुरक्षा पार्टी इज अ पॉलिटिकल पार्टी रीजनल पार्टी नाउ वी स्टैंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द ट्राइबल पीपल हम लोग ट्राइबल समाज के लोगों के लिए हित के लिए खड़ा है ट्रैवल के लिए बेनिफिट के लिए खड़ा है वेलफेयर के लिए खड़ा है गन सुरक्षा पार्टी हम लोग ना रूलिंग है ना अपोजिशन में किसी से हम लोग कुछ लेना देना नहीं है वी आर टॉप वन पार्टी सो वी आर ओनली फॉर स्टैंड फॉर द ट्राइबल पीपल हमें अपने लोगों के लिए अपने समाज के लिए अपने हित के लिए काम करना है इसके लिए आप मनीगांव आया है चाहे आप किसी भी वर्ग से हो कहीं में भी हो बट आप तनिया हो है आप अरुणाचली हैं इस मिट्टी से जन्मे हुए लोग हैं कहीं का भी रहो चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो बट वी आर द सन ऑफ सॉइल ऑफ राइजिंग सन सो वी आर हियर फॉर डूइंग वेलफेयर ऑफ आवर पीपल हमें पॉलिटिक्स करना नहीं है किसी का साथ हमें किसी से कोई मतलब नहीं है बट हमें प्रोग्रेसिव डेवलपमेंटल उस दिशा में देखना है हम सबको लोगों ने बहुत सारा पॉलिटिक्स करी है उस दिशा को देखते हुए मुझे बहुत दुख होता है मैं पहले आर्मी में था बहुत सारे आ रहा आप लोगों का बीच रोड कंडीशन वही का वही है लोग वही का वही है मुझे देखकर बहुत आश्चर्य हो रहा है साथ ही बहुत दुख हो रहा है मनीगांव के लोगों को मुझे पीड़ित हो रहा है तो इसलिए मैं चाहूँगा मैं ये कहना चाहूँगा आप किसी भी सेक्टर में हो आज नाउ यू आर स्टूडेंट मे बी यूथ मे बी फार्मर वट एवर यू मे बी यू आर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय मे बी यू आर द बिजनेसमैन वो कोई मायने नहीं रखता है मायने वो रखता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें एक दिन जो सरकार बनाने के लिए लीडर बनाने के लिए वो शक्ति दे रखा है वो है इलेक्शन का दिन वोटिंग का दिन वो दिन आ गया है 19 अप्रैल 2024 आज उत्सव का दिन को हमें बहु भी जो प्रिंसेस राइट है जो लीगल राइट है हर एक व्यक्ति को जो 18 साल से ऊपर जिन्होंने अपने नाम को ई रोल में इलेक्ट्रिक नॉमिनी में दर्ज कराया उन्हें वोट देने का अधिकार है तो मेरी आपसे जो दरख्वास्त है जितने भी मनीगांव के लोग हैं आपको वो नेता चुनना है जो आपके लिए सोचे जो आपके लिए करे आने वाले भविष्य के लिए
आज मैं आपके सामने ये बातें रखना चाहूंगा कि इस बार जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट वन अरुणाचल वेस्ट में एक कंटेस्टेंट है, आई रिपीट एक कंटेस्टेंट लोग है। कौन है क्या है वो मैं पर्सनली मैं किसी को कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, बट मैं इतना आपको कहना चाहूंगा एज ए लीडर, एज ए पार्टी लीडर, आपको देखना होगा कि इंडियन पार्लियामेंट में जाकर कौन सा आपका कंटेस्टेंट एक कैंडिडेट में से आपके वेलफेयर के लिए बात करेगा, मनीगांव के लिए बात करेगा, मनीगांव का भविष्य के लिए बात करेगा, मनीगांव के बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, बुजुर्ग के लिए बात करेगा, वो आपको देखना होगा। मेरा ये कहना है, पहली बारी बड़ी गौरव की बात है हमारे लिए, सभी अरुणाचल वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है, इज्जत और सम्मान की बात है कि हमारे बीच एक ऐसे माँ, ऐसे बेटी, ऐसे नारी उठकर खड़ा हुआ है जिन्होंने आंदोलन शुरू किया थे, वही प्रोटेस्ट अगेंस्ट करप्शन और टू मूव टुवर्ड द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ऐसे नारी जो तोको शीतल मैडम जी है, उनके लिए नहीं करेगा तो किसके लिए करेगा, आप खुद डिसाइड करना। शी इज अ वेरी फिट फॉर टेबलिंग ग्रीवेंसेस फॉर अस इनसाइड द इंडियन पार्लियामेंट। ये मैं अपना लीडर है बोल के, कंटेस्टिंग कैंडिडेट पार्टी का बोल के, ये मैं आपको तारीफ नहीं कर रहा हूँ, आपको ये नहीं बता रहा हूँ, बट उनके पास वो गुण है, उनके पास वो क्वालिटी है, उनके पास वो शक्ति है। मैं सिर्फ नहीं कहता हूँ, सारे लोग कहते हैं, देश विदेश हर लोग कहते हैं। आप लोग हमेशा मीडिया का माध्यम से देखता है, तो अभी परीक्षण के वक्त है हमारे लिए। 19 अप्रैल को हमारा चिन्ह है टॉर्च लाइट जो आपके सामने रखी है, उसे आपको दबाना होगा और मनीगांव को आगे लेके जाना होगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ के जितने मनीगांव के जितने भी वोटर्स हैं, जितने पब्लिक है, अन्य अब लोग जितने भी आया हुआ है, तो उन सब में मेरे दरख्वास्त से अनुरोध है कि वो उस दिन को बहु भी अपना राइट्स को, अपना वेलफेयर को, अपना पावर को उस दिन में आप जरूर इस्तेमाल करें। मैं अपने बात को विराम दूँ उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। क्या होता है कि हमारे लोगों की बेल्ट में, हमारे लोगों को बहुत सारे लोग, हम इमोशन से जुड़ा हुआ लोग हैं, सेंसिटिव से जुड़ा हुआ लोग हैं, तो लोग इलेक्शन का टाइम में हमें इतना उल्लू बनाता है, पैसे देके सारे चीज को खरीद लेता है और आपको अच्छे से बातें बताएगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। लेकिन आप देख रहे सदियों से इलेक्शन होता आया, कितना लीडर आया, कितना लीडर गया, कुछ हुआ? रास्ता का हुआ क्या? आप मुझसे पूछ, रास्ता हुआ क्या? पिछले बार 2019 में भी बोला था कुछ कर देगा, कुछ किया क्या? नहीं किया। मैं तो बहुत पूरा पहले यहाँ बैठा हुआ था एक कैंप में, वैसे देख रहा हूँ, वैसे ही देख रहा। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में आप लोगों का समक्ष में मैं अपना शीतल मैडम से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा, जब आप हम सब आपको मैंडेट करेगा, आप MP बन के पार्लियामेंट में जाओगे, सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में मेरे मनीगांव की ओर से, माता पिताओं की ओर से, बहनों की ओर से, जितना भी पब्लिक की ओर से मैं शीतल मैडम का अनुरोध करूँगा आपका सामने, सबसे पहले आप अपना जो फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा मनीगांव का रास्ता को आप करिए, और दूसरा यहाँ का जो स्कूल वगैरह है उसको आप अपना जो भी लेफ्ट पार्ट से आप देखने से अच्छा होगा। ये अगर आप फर्स्ट प्रायोरिटी में आप लोग से ठीक है करके, ये आप लोगों की तरफ से मैं एज लीडर हिसाब से उतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत साल से यहाँ था, तो आज देखा वैसे का ऐसे, इसलिए मुझे बहुत पीड़ित हो रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस बात को नोट करोगे और मैडम को 19 अप्रैल में वोट करके उसके विजय बनाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। भारत माता की थैंक यू। जितने भी हमारा मरीगांव के आने अबो और छोटे बहन भाई, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग ने आज हम लोग को इतना यहाँ में हम लोग आ रहे बोल के, दीदी आ रहे बोल के आप लोग यहाँ में स्वागत किया, उसके लिए पोलूंग टीम, गांव बुरा और उसका बाद में ये हमारा जो एडमिनिस्ट्रेट, हमारा जो पुलिस फोर्स को भी धन्यवाद देता है। तो मेरा नाम निमी तबा, मैं अपर सुबनसिरी से मैं बिलोंग करती हूँ। मैं मिस नहीं हूँ, 5 बच्चा का माँ है, मिसेस है, 4 बेटी है, 1 बेटा है, और मेरा वही सियांग आनो में मेरा शादी हुआ है ना। तो आज मैं आप लोग का बीच में हम थोड़ा सा गालो तचेंदो ही गालो लो सिंगो मेन रहे और हिंदी लो सिंगो कम अनिला को मेन रहे। तो ये लोग गुण कहो आना में दोनों नारू का तो सब आप लोग का सभी को मालूम है। हमारा अन्य तोको सीटेल को हम लोग हमारा मनीगांव का यहाँ का अपर सुबनसिरी, कामलर, एंटर अरुणाचल का जितना भी है हम लोग हमारा अन्य तोको सीटेल को जो है जैसे भी होने से भी आप जो है वेस्टर्न पार्लियामेंट में जो है हमारा गरीब का
आवाज को जो है आप जो है वहां में पार्लियामेंट का अंदर में जाना है बोल के आज उसको एमपी का रूप में जो है पब्लिक जो है उसको चॉइस किया है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ में आया है। तो मैं तो मेरा ये मणिगांव मेरा फर्स्ट विजिट है, फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ। तो रास्ता भी अभी यहाँ में देखा है, तो रास्ता को भी देख के आया, बहुत धूप लगा है। और कल तातो में भी बैठा था, तो तातो में भी लाइट नहीं है, तो लाइट चला गया तो बहुत धूप भी लगा है। अरे यहाँ में तातो में कैसा एक डिस्ट्रिक्ट में कैसा करके लाइट चला गया बोल के 7 बजे से 7:30 ऐसे में लाइट ये हो गया था। तो देखा है तो रात भर हम लोग अंधेरा में बैठा है, तो बहुत धूप लगा है। स्पेशली हमारा यहाँ का मणिगांव तातो यहाँ का ये डिस्ट्रिक्ट को जो है हम देख के बहुत धूप लगा है। तो आज हम थोड़ा सा आप लोग का बीच में मैं थोड़ा सा अनी तोकोसीतेल का थोड़ा सा जर्नी को मैं आप सभी का बीच में मैं रखना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे जितना भी है हमारा अन्य लोग और अब लोग स्पेशली हम लोग का जो गाँव में बैठने वाला जो है, आपका यहाँ में लाइट का परविलाइज ठीक नहीं है और रास्ता ठीक नहीं है, तो यहाँ में नेटवर्क तो ऑब्वियसली यहाँ नेटवर्क अवेलेबल नहीं होगा। तो इसलिए वो अन्य लोग को आप लोग को जो ये सोशल मीडिया में जो टीवी में जो सोशल मीडिया में जो आप लोग का यहाँ तक अभी तक जो संपर्क में नहीं है, तो मैं थोड़ा सा अनी तोकोसीतेल का रिलेट में मैं थोड़ा सा आप सभी को मैं बताना चाहूंगा। हमारा अनी तोकोसीतेल जो है अरुणाचल करप्शन अगेंस्ट ये एक AAC टीम बोल के दिल्ली में पद यात्रा किया था भाई लोग। तो उस बीच में जो है अनी तोकोसीतेल जो है अरुणाचल में करप्शन है बोल के AAC टीम पद यात्रा कर रहा है बोल के जब भाई लोग जो है सहयोग करके उधर में जब पद यात्रा चलते समय उसी समय में जो है अनी तोकोसीतेल जो है उन्होंने घर अंदर में बैठ के मेरा अरुणाचल में इतना बहुत साल से अनी तोकोसीतेल भी अपना लाइफ को जो है पब्लिक के लिए सेक्रीफाइस किया, एक सोशल एक्टिविस्ट बन के वो जो है सेक्रीफाइस किया था। तो दीदी ने देखा तो भाई लोग जो है AAC नाम को लेके अरुणाचल करप्शन नाम को लेके ये लोग जो है पद यात्रा चल रहा है। तो मेरा जो पिछले में जो 25 ईयर्स में मैं जो काम कर रहा था वो काम को लेके मेरा भाई लोग जो है अभी पद यात्रा चल रहा है बोल के दीदी ने उस बीच में जोड़ के जो है भाई लोग को जो है ये सपोर्ट करके दीदी जो है रास्ता में गया था। तो उस बीच में रास्ता में जाते समय को आप सब देखा है हमारा दीदी जो है कितना संघर्ष किया, कितना दुख तकलीफ झेला। रास्ता में केवल रास्ता में चला नहीं, धूप में चल के गया, जल के गया, बारिश में भीग के गया। उसको भी उससे भी ज्यादा कठिन हमारा अरुणाचल के हर एक व्यक्ति हर एक जन उसके खिलाफ उसको इतना अनाप शनाप बोल के उसका खिलाफ में निकला। तो ऐसे कर करके ठोकर कहाँ के अनी तोकोसीतेल जो है 2500 किलोमीटर जो है अरुणाचल से लेके दिल्ली राजधानी तक अपना पद यात्रा वहां में गया है। तो हम लोग भी अनी तोकोसीतेल का जो पद यात्रा चलते हुए उसका दुख तकलीफ को देख के मैं भी अगर हमारा अरुणाचल से एक लेडी अगर वहां चल के गया है तो हम माता क्यों सहयोग नहीं करेगा बोल के मैं नारी शक्ति का मैं अभी प्रेसिडेंट में हूँ। तो उसी समय मेरा नारी शक्ति का संगठन नहीं था। तो ऐसा करके हम लोग जो है सोशल मीडिया का माध्यम से सोशल मीडिया के थ्रू से हम लोग जो है अनी तोकोसीतेल का जो रोक के जाने वाला उसका जो पाँव छीन के जाने वाला उसको अलग अलग आदमी लोग जो है एलिगेशन डालने वाला दुनिया भर का उसको जब एलिगेशन डालते समय को भी हम लोग भी बहुत रोया था। एक औरत को इतना एक लाचार औरत को ऐसा करने देके भी अगर हम लोग तोकोसीतेल मैदान को दिल्ली में जाके अगर हम सहयोग नहीं करने से कौन करेगा बोल के मैं मेरा टीम को लेके 200 से ज्यादा माता को लेके मैं दिल्ली गया। तो दिल्ली में जाते समय को हमें बहुत तकलीफ, हमें टेररिस्ट का दर्जा दिया था और हम लोग को जो है एक रिफ्यूजी एक हम लोग को जो है एक ये फॉरेनर जैसा हम लोग को ट्रीट किया गया था। जब हमारा औरत को जो है हम लोग जो है दिल्ली में जब हम लोग रेलवे स्टेशन में ये करते समय को दिल्ली पुलिस को लगा के हम लोग को जो है रेलवे स्टेशन में हमारा औरत 200 से अधिक औरत को जो है वहां डिटेन करके रखा गया था। उसके बाद दीदी ने सोशल मीडिया में देख रहा है हमारा अरुणाचल का औरत लोग हमको सहयोग करने के लिए आने वाला जो है उधर में रेलवे स्टेशन में देख रहा है तो जो दीदी को खाने के लिए जो सब्जी लेके गया था हम लोग का ये होता है सब्जी होता है ना लोकल सब्जी आलोस में गया, वेस्ट सियांग से गया, अपर सुबनसिरी, लोअर सुबनसिरी सब ईस्टर्न वेस्टर्न जोन से 26 डिस्ट्रिक्ट का औरत वहां में पार्टिसिपेट करके जाते समय में दीदी के लिए सब्जी लेके जाएगा, दीदी के लिए चावल लेके जाएगा बोलते समय में 6 घंटा 7 घंटा जब डिटेन करके रखते समय में उसी समय में औरत को जो है सब्जी को निकाल के जब कार आता तो दीदी देख के अरे मेरा औरत को वहां में इतना तकलीफ हो
हो रहे बोल के दीदी जो है वहाँ में ये को हमारा जो ये को क्या बोलते हैं हम लोग का एमपी साहब को जो है टेलीफोन घुमा के बोला है हमारा इतना औरत वहाँ से अरुणाचल से आया है तो अभी दिल्ली पुलिस यहाँ में इतना ये कर रहा है बोल के बोलते समय को दीदी को भी इनिशिएट नहीं किया था, बोला आउट ऑफ स्टेशन है यहाँ में क्या करने के लिए दुनिया भर का औरत को क्या करने के लिए लेके आया है बोल के वहाँ में हम लोग को इतना थ्रेटनिंग किया। और हम उधर में जब जाते समय को हमारा औरत को हम लोग जो है बैठने के लिए दीदी को सहयोग करने के लिए एएससी करप्शन को हम लोग जो है सपोर्ट करने के लिए हम लोग जाके बैठने के लिए जगह नहीं है बोल के हम लोग जो है टेंट बना के रखा था। हम लोग जो अरुणाचल भवन में टेंट बना के रखा है तो हम लोग को अरुणाचल भवन में भी हमारा 200 से अधिक हमारा महिला को नारी को हम लोग को बहुत ही ज्यादा हमारा हम लोग को जस्टिस अनजस्टिस किया है। वहाँ में हम लोग को एंटर भी करने नहीं दिया था। हम लोग को इंडिपेंडेंट अपना अरुणाचल का भवन हमारा डिस्ट्रिक्ट का आपका डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का बंद को लेके जो है अरुणाचल भवन अरुणाचल हाउस बनाया जाता है। वहाँ पे हमारा औरत को हम लोग को घुसने नहीं दिया। हम लोग को दिल्ली पुलिस को लगा के एक हम लोग को फोरेनर जैसा हम लोग को ट्रीट करने दिया। तब से हम लोग बहुत दुख हो गया था। 26 डिस्ट्रिक्ट का औरत लोग भी हम लोग सब रो के हम लोग बोला है दीदी इतना तक यहाँ में आप अभी 8 महीना आप अभी यहाँ में बैठा है। यहाँ में आप जितना भी यहाँ में ये पार्लियामेंट हाउस का सामने में कितना 200 मीटर का सिर्फ डिस्टेंस ऐसा में दीदी लोग वहाँ में जंतर मंतर में बैठ रहा है। 8 महीना आपको यहाँ में सीख के अरुणाचल में करप्शन है बोलने दे के आपको सुनाई नहीं देने वाला जो है आप यहाँ में कितना तक तकलीफ करेगा। तो उसी समय में हमारा 26 डिस्ट्रिक्ट का माता जो है माँ लोग जो है बहुत सेंटीमेंट हुआ बहुत दुख हुआ। हम लोग जो है अपना वोटर राइट को मार के हम लोग जो है इतना हम लोग का अरुणाचल को आज हमारा मलीगांव में क्यों अभी तक लाइट नहीं आया है, क्यों यहाँ में एजुकेशन सेक्टर ठीक नहीं है, हेल्थ का परमिनेंस क्यों ठीक नहीं है, ये आपका रोड क्यों ठीक नहीं है, आप लोग को जानना चाहिए। उसके लिए दीदी जो है 8 महीना वहाँ संघर्ष किया। उसी समय में हम लोग को इतना थ्रेटनिंग करके दीदी को इतना थ्रेटनिंग करके करते समय को औरत लोग सब बोला था यहाँ में आप लड़ाई लड़ना छोड़ दो। अगर यहाँ राजधानी में दिल्ली में अगर आपका बात को सुनाई नहीं देता है तो हम गांव-गांव में जाके घर-घर में जाके डिस्ट्रिक्ट में जाके अपना दुख तकलीफ को हम लोग बताएगा और हमारा बीच का लीडर आप दीदी बनना पड़ेगा बोल के उसी समय में हम लोग कसम खाया। सब माँ रो के दीदी को बोला है अगर हम लोग ये करप्शन को ये गंदगी का जरिए को अगर हम लोग हटाना है तो हमें पावर में बैठ के हमें लड़ना पड़ेगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अंदर में आके आप अरुणाचल का हर एक गांव का हर एक डिस्ट्रिक्ट का ग्रीवेंसेस को जो है आप वहां में ये करके आप जो है लड़ना पड़ेगा बोल के उसी समय में हम लोग निर्णय लिया। उसके बाद हम औरत जितना हमारा नारी है हमारा माता लोग को हम लोग लेके फिर वापस आ गया। आके यहाँ में आप लोग देख रहा है इतना रेसलेस करप्शन पे करप्शन करप्शन पे करप्शन। आपका एबीसीएस प्यास को आप लोग तो सब मालूम है। इंटर अरुणाचल इतना बड़ा स्केम यहाँ में हम लोग का इतना यहाँ में एक यामर पदम बोल के एक व्हिसल ब्लोवर का एक भी आज क्यों नहीं दे सकता है गवर्नमेंट। और हमारा यहाँ इस बीच में हमारा गालो कम्युनिटी का हम लोग का तुलेगा का एक ब्रदर यहाँ में विक्टिमाइज हुआ है। आज तक उसका फैमिली को क्यों जस्टिस नहीं दिया है बोल के हम दिल्ली से वापस आने का बाद भी हमारा पाँव रुका नहीं, हमारा आवाज दबा नहीं। तब भी मैं स्टेज में हम लोग का टीम को लेके जो है हम लोग बंद कॉल किया। हम लोग को इतना यहाँ में जितना है दुख तकलीफ को सबको सोल्व कर देगा बोल के हमारा सीएम सर राउंड टेबल में बैठ के एश्योरेंस देता है। एश्योरेंस देने का बाद में अपना वो फुलफिल अपना जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट को भी फुलफिल नहीं किया गया था। फिर दोबारा हम लोग बंद कॉल किया तो हम एक लाचार माँ को इतना दुनिया भर का लाचार माँ को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में मुझे तवांग में रखा गया था। अलग अलग माँ को तांतीपुर की माता को उठा के सेंट्रल जेल में रखा था। क्या हम करप्शन के लिए लड़ने वाला जो सेंट्रल जेल में बैठने के लिए हम लोग क्या आवाज उतारा है क्या पब्लिक? क्या हम जो है गरीब के लिए आवाज उतारने से क्या हम सेंट्रल जेल में जो है महीना महीना बैठना पड़ेगा क्या? आज इसलिए हमारा मनीगांव का जितना भी है माता पिता दीदी बहन जितना भी है हम लोग अगर नेता को अगर हम 15 साल उसको मैं सर्विस दिया है तो आज हम एक औरत को एक माँ को 2500 किलोमीटर पैदल पद यात्रा अपना स्टेट के लिए आवाज उतारने वाला जाने वाला के लिए हम क्या एक बार मौका नहीं दे सकता है? मलीगांव का मानो देगा ना नहीं देगा? हम उससे मंत्री पद में 15 साल रखा। स्टेट का इशू को वहां में दिल्ली जैसे शहर में
करप्शन है बोल के, करप्शन के लिए मुद्दा उठाने से बोलता है ये लोकल इशू है, इसको लेकर कोर्ट में जाओ। इसलिए हम लोग जो है आगे अरुणाचल को जलते हुए नहीं देख सकता है, अरुणाचल को और अंधेरा में बैठने के लिए हम लोग नहीं देख सकता है। आज भी इतना एक औरत को, एक लाचार औरत को, एक कमजोर औरत को अरुणाचल का राजा लोग मंत्री पद में बैठ के 15 इयर्स 20 इयर्स चीफ मिनिस्टर में राज करके बैठने वाला आज सब इसका ऊपर में जो है सब गेम खेल रहा है। सब बोलता है ये बकोसीधर का ये जो जीएसपी टीम जो है ये जो एनडीए अलायंस से बोलता है, एनडीए अलायंस है तो ये जो है आज कैसे करके बीजेपी का जो है अगर ये जो है अलायंस है तो क्यों कॉम्पिटिटिव करके यहाँ तक मनीगांव तक आएगा। उसको भी हमारा लोग जो है लॉजिक लगा के सोचना चाहिए। बात का बात फॉर एग्जाम्पल ये अगर सब बोलते टिकट चाहिए टिकट को वोट मारेगा, लेकिन अलायंस को क्यों वोट नहीं मारेगा। बात का बात मैं बोल रहा हूँ, एनपीपी भी अलायंस है, बहुत सा अलायंस लोग है, अलायंस को उसका अलायंस को वोट मारने के लिए रेडी है तो कोशिश का ये जीएसपी टोल स्लैब को वोट देने में क्या हर्ज है। सब बोलते हैं अलायंस है, वोट ए थी में बोलता है। अगर तो कोशिश का ये टोल स्लैब जीएसपी गण सुरक्षा पार्टी अगर बीजेपी अलायंस होता तो आज इस मंच तक इस ये आना मनीगांव का ये जमीन तक नहीं पहुंचना था। इसको भी हमारा अरुणाचल का लोग जानना है। अभी तक उसको पूरा अभी सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा ये करके जितना करना था कर लिया। पर भी अभी एक तो हम लोग का एक माँ है उसको भी लगा के ये जो है तकोसीतल दिल्ली में घर खरीद दिया। तकोसीतल बोला था कभी भी हम जो है ये पॉलिटिक्स में नहीं आएगा। हम 2 साल सोशल एक्टिविस्ट बन के स्टेट का सिस्टम का खिलाफ में आवाज उठाया। मुझे क्या मिला सिवाय काल कोतरे के सिवाय आवाज उठाया था, काल कोतरे में बंद कर दिया। सोशल एक्टिविस्ट बनेगा तो उधर पे जेल में बैठे रहेगा ना, तो जेल में बैठेगा तो कौन काम करेगा। इसलिए हम लोग जो है अना तकोसीतल को दीदी तकोसीतल को जो है हमारा स्टेट का हम लोग का जो है ये का वेस्टर्न पार्लियामेंट को सिर्फ नहीं बोल के हमारा स्टेट को भी हमारा अरुणाचल का कितना दुख दर्द को जो है आप जान के हमारा दुख दर्द को जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में आई आप जो है जैसा भी करना पड़ेगा बोल के सब आशीर्वाद दे के किया है। तो इसलिए मैं हमारा यहाँ का मनीगांव का आना लोग को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। आदमी अभी आप लोग को बोलेगा, सब बोलेगा तो कोशिश हमको पैसा नहीं दिया है, तो कोशिश हमको चाय नहीं दिया है, चीनी नहीं दिया है। आपको वो एक चीनी से आपका वो 100 रुपया से आप कितना तक चलेगा। आपका चीनी चाय आप हर समय में आप पीता है। अभी जो है जो रूलिंग गवर्नमेंट में बैठने वाला जो मंत्री पद में 15 साल 20 साल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बन के बैठने वाला वो लोग को कैसे करके तकोसीतल जो है पैसा का कॉम्पिटिटिव कर सकेगा। माँ पिताजी आप लोग क्या तकोसीतल से जो है चाहता है क्या? तकोसीतल जो है हम लोग को पैसा देना पड़ेगा, चीनी देना पड़ेगा, चाय पत्ती देना पड़ेगा, तब जाके तकोसीतल का हम लोग वोट मांगता है बोले। हमारा जो ये जो है यहाँ का आना आप लोग का दिमाग भी ऐसा है क्या? इसलिए हमारा सोच को बदलना चाहिए। आज मनीगांव का इतना तक बेगवाद होकर क्यों बैठ रहा है? आप लोग अपना आप को आप लोग क्वेश्चन करो। जब इलेक्शन आते हैं तो मीठा बात करके रास्ता को बना देगा, लाइट को बना देगा, एजुकेशन सेक्टर को ठीक कर देगा, हेल्थ को मेडिकल को बना देगा बोल के इतना झूठा प्रॉमिस करके आया। अभी तक आपका मनीगांव वैसा ही है। तो आज हमें हमारा सोच को बदलने के लिए हमारा टाइम आ गया। अभी ज्यादा टाइम भी नहीं है। अप्रैल 19 को जो है एक बार उधर में ये ईवीएम मशीन में तेज कर देगा। आप अगर मनीगांव को उजाला में लेके जाना चाहता है तो सही दिशा में अंगूठा को डालना है। अगर आप मनीगांव को जो है सेम इसी तरह आप जो है अंधेरा में देखना चाहता है, यहाँ लाइट नहीं होगा तो आपका बच्चा जो है कैसे पढ़ाई करेगा। टेक्नोलॉजी इतना फास्टेस्ट हो गया, यहाँ में आपका जो है नेट यहाँ ठीक नहीं होगा तो आपका बच्चा जो है बाहर का नॉलेज कैसा लेगा। ये चीज को जो है हमारा आना मनीगांव का आना अब बहन भाई हम लोग को सबको हम लोग को जो है हम लोग को रिपेयर होना पड़ेगा। हम लोग को रिपेयर होना पड़ेगा, सही लीडर को जो है हम लोग को सुनना पड़ेगा। तो मैं आप सभी को मैं जो है मैं
रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग का ब्लेसिंग का साथ है सर, आप लोग जो है आगे तोकोसीतल को जो है ये 19 अप्रैल को जो है आप लोग जो है गना सुरक्षा एक ये टॉर्च लाइट है रोशनी जो आप लोग को जो रोशनी के ओर लेके जाएगा। अभी तक मनीगांव अंधेरा में है। मैं कल तक में स्टे किया था, रात 1 नाइट हम वहाँ सोया था, अंधेरा में सोया था। इसलिए हमारा यहाँ का मनीगांव का लोग को और यहाँ का लोग को जो है टॉर्च लाइट का बहुत जरूरी है। ये अंधेरा है, इसलिए इसको टॉर्च लाइट दिखाने के लिए सिर्फ वही है कि एक ही रास्ता है, आगे तोकोसीतल। जय हिंद, थैंक यू। Malang-malangnya tani kue sumabanya sengaga mamdi telak padiae. Mego telak pade. Telak mae. Tok tu बीच में nyesen kam telak kumalo ngo kam buri bokar jablak kuma. निबोरा मो जाबला कुमा बीच में तब तो बीच का रास्ता निकालेगा, हिंदी में बात करेगा ना। आप सबको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। जितने भी सीनियर सिटीजन और जितने भी हमारे पिता समान गांव बुरास और जितने भी गांव बुरीस एल्डरली फिगर ऑफ द स्पेशली मनीगांव सर्कल और जितना सुंदर सुंदर खूबसूरत हरा भरा खिली खिली हुई हमारे आभूषण अपनी ट्रेडिशनल लोकल ऑर्नामेंट्स के साथ में जो बैठी मेरी नारी तू नारायणी, नारी तू नमोस्तुते कहा जाता है। नारी सृष्टि में सबसे बढ़ के होता है। माँ दुर्गा का, हम माँ दुर्गा जी को दुर्गा माता के नाम से जानते हैं, वो भी एक नारी है। माँ सरस्वती भी एक नारी है और माँ काली भी एक नारी है। तो हम नारी जो है बहुत इस देश में, भारत देश, अगर हम स्पेशली बात करें भारत देश की, तो हमारी भारत देश में नारियों को सबसे ऊंचे स्थान पर रखा जाता है। हम माता कामाख्या की पूजा करते हैं, माता सरस्वती की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की अर्चना करते हैं, माता काली के भी भक्त होते हैं। तो मेरे जितने भी नारी साथीगण यहाँ पर बैठे हैं, आप सबको बहुत बहुत मतलब ए वेरी वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग, थैंक यू। और उसके साथ जितने भी युवा साथी हैं, यूथ, मेरे लविंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स और जितने भी हमारे यहाँ इस हमारे खूबसूरत से मोनीगांव सर्कल के, सीओमी डिस्ट्रिक्ट के मोनीगांव सर्कल के जितने भी निवासी यहाँ रहते हैं, जो अपने आप को एक सच्चा भारतीय, सच्ची अरुणाचली, एक सच्चा सीओमियन सोचकर यहाँ गर्व के साथ सिर उठाकर जीते हैं, रहते हैं, आप सबको भी मैं तहे दिल से अभिनंदन व्यक्त करती हूँ। और साथ ही साथ हमारे जितने ये एक सीमा बल है और इस सीमा बल में हमारे भारत के जवान अलग अलग राज्य से आकर के यहाँ आपकी रक्षा करने, इस प्रदेश की रक्षा करने, हमारी मातृभूमि की रक्षा करने, इस देश की रक्षा करने हेतु जितने जवान यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि मैं पहली बार आई हूँ, आज यहाँ मेरा पहला विजिट है, फिर भी जिस तरीके का यहाँ नक्शा बना हुआ है, ये सब देख करके मुझे एक आइडिया आ जाती है, जैसे बॉर्डर मूवीज में देखा था, तो ऐसे ऐसे बने हुए थे। यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि यहाँ कितने कष्ट के साथ, कितने बड़े चैलेंजेस को फेस करते हुए हमारे देश के जवान यहाँ पर तैनात हैं हम सब की रक्षा के लिए। तो जितने भी हमारे यहाँ मोनीगांव सर्कल के जितने भी मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, जितने सारे लोग हैं, आप सबको हमेशा हमारे इन जवानों का शुक्रगुजार रहना चाहिए और उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके खुशियों के लिए, उनके घर परिवार के लिए हमें अपने उस ऊपर वाले से दुआ करना चाहिए। आप सबको एक गुड मॉर्निंग विश करते हुए, उसके साथ साथ हमारे जितने भी ऑफिसर्स यहाँ पर आए हैं, गवर्नमेंट के तरफ से मजिस्ट्रेट्स आए हैं और जो भी आज हमारे इस मीटिंग में जो हमारे साथ में साक्ष बन करके हमारे साथ खड़े हैं, इस मीटिंग में जितने भी लोग आज अपनी दीदी को, अपनी माँ को, आने तोकोसीतल को, दीदी तोकोसीतल को देखने के लिए, मिलने के लिए जितने लोग यहाँ आज उपस्थित हुए हैं, आप सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और शुक्रगुजार हूँ। और साथ ही साथ हमारे साथ जितने सारे लोग ईटानगर से चलते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, हमारे स्टेट के जीएसपी के गण सुरक्षा पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान लिखत आगू जी और उनके साथ में हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी श्रीमान एडवोकेट ताई शिवाजी और उसके साथ में
हमारे कुरुकुमे डिस्ट्रिक्ट के वो एक और कोना है। ये सियोमी एक कोना है चीन से सटा हुआ, तो हमारा अरुणाचल का एक और कोना कुरुकुमे वहां पर है चीन से सटा हुआ। वहां से आई है हमारी दीदी गिदारीमा बेकिया जी, कुरुकुमे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जी, और उसके साथ में हमारे सियोमी डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाबू लिंगा जी और मेरे बड़े भैया आची कपोतारा जी, उसके साथ में मेरी असिस्टेंट बेटी बिंगिया लोचू जी, लेपरादा डिस्ट्रिक्ट के जॉइंट सेक्रेटरी भाई माई दोके जी, और हमारे साथ जितने भी मीडिया के जितने भी साथीगण आए हैं, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक चलकर आप लोग मेरे पास मेरे साथ चलकर आए हैं। जब से मैंने चलना स्टार्ट किया तब से लेकर अब तक चल रहे हो, और आगे भी मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसी तरह से मेरे साथ चलते रहोगे, कभी थकोगे नहीं, कभी झुकोगे नहीं, कभी हारोगे नहीं। तो सबसे पहला इंसान का हार कहाँ से होता है? इंसान का हार तब होता है जब वो प्रयास करना बंद कर दे, जब उसके अंदर की हिम्मत मर जाए। इंसान के पास भले कुछ हो ना हो, हिम्मत होना बहुत जरूरी है। हिंदी में एक कहावत है, हिम्मत दे मर्दा तो मदद दे खुदा। आज एक मिसाल बनकर के आप सबके सामने मैं खड़ी हूँ, आपकी अपनी बेटी, अरुणाचल की बेटी, भारत की बेटी तोको शीतल मेरा नाम है। आप सब परिचित होंगे मुझसे। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे जितने भी यहाँ मेरे माताजी पिताजी आप लोग सब यहाँ बैठे, आप सबको सबसे पहले मैं अपना प्रॉपर परिचय करवा दूं। मेरे पास कुछ भी नहीं है, ढंग का 2 जोड़ा कपड़ा भी नहीं है पहनने को, 2 टाइम का खाना खाने को पर्याप्त रोटी सब्जी भी नहीं है मेरे पास में। एक चीज है, ईमानदारी, सच्चाई, मेहनती, और सबसे बड़ी चीज है हिम्मत। क्योंकि मैं चाहे सिचुएशन जैसा भी हो, हिम्मत के साथ फेस करती हूँ और बिल्कुल ईमानदारी के साथ फेस करती हूँ। किसी चीजों को तोड़ मरोड़ करके मुझे उसका अलग अलग कहानी बनाकर, सारांश बनाकर पेश करने की मेरी आदत नहीं है। मैं चाहे जैसा भी हूँ, जिस रूप में हूँ, कैसी भी हूँ, मेरी वो सारी चीजें आप सबके सामने मैं हमेशा खुले मन से रखती आई हूँ और आज भी रख रही हूँ, और आगे भी जब तक इस संसार में मेरी सांसें चलेगी तब तक मैं अपने बातों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं रखती रहूंगी। हिम्मत जो मुझ में आई है वो ऐसे ही नहीं आई है। हिम्मत मेरे अंदर उत्पन्न हुई है, हिम्मत मेरे अंदर आई है तो मुझे विवश किया है मेरे हालात ने। इतना मजबूर किया मुझे कि मैं मजबूर हो गई आज इस स्थान में खड़ी होने के लिए, कि जिसे एक जमाने में मैं अपनी खुदा मानती थी, अपने भगवान मानते थे, सबसे अच्छा नेता मानते थे, उसके गुणगान गाए मेरे मुंह नहीं थकते थे। उनके पम्फलेट को लेकर के इलेक्शन में मैं पार्टी पीती थी, उनका गुणगान कर करके गांव के कोने कोने में, हर जिले में अरुणाचल के मैं जाती थी। वोट दो, अपने किरण जीजू को वोट दो, मेरे जीजाजी को वोट दो करके जिस इंसान के लिए, जिस मान्यवर नेता के लिए मैं प्रचार करती थी, आज मैं उसके विरोध में यहाँ खड़ी हूँ और मैं पूरा सीना तान के खड़ी हूँ, निहत्था खड़ी हूँ। मेरे पास कोई औजार भी नहीं है उनसे लड़ने की, और मैं उसको कोई चुनौती नहीं दे रही हूँ। मैं सिर्फ अपने सच्चाई के साथ, अपने बातों के साथ आप सबके बीच में मैं खड़ी हूँ। मैं इस कदर मजबूर हुई कि आज मुझ में इतनी हिम्मत आ गई कि ना तो अब मुझे उसके अंदर वो भगवान दिखता है, ना तो उसके अंदर मुझ में अब मुझे वो भला नेता दिखता है। अगर मुझे कुछ दिखता है तो एक कामचोर व्यक्ति दिखता है, मुझे एक नालायक बेटा दिखता है। मुझे इस राज्य ने उसको बनाया, हमने आपने सबने मिलके बनाया उसको, हमने उसको ऊंचे से भी ऊंचा मुकाम तक पहुंचने में हमारी बहुत बड़ी योगदान है। हमारा एक एक वोट ने उसको आज भारत के मंत्रिमंडल में, उसको यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर में उसको मिनिस्टर का बर्थ दिलवाया, लेकिन वो एहसान फरामोश निकला। उनको आप लोगों की भावनाओं की कोई कदर नहीं है, उनको आपसे मतलब ही नहीं है। उनका मानना और कहना है कि अरुणाचल प्रदेश में हमारे पूरे राज्य में जितने जनजाति बसते, वो तो हमारे दिल्ली जो भारत की राजधानी है, नेशनल कैपिटल दिल्ली की राजधानी की एक छोटी सी कॉलोनी की जनसंख्या की बराबर है। ये उनका कहना है। और दूसरी बात उनका कहना है कि मैं देश का मंत्री हूँ, मुझे देश की सेवा करना है, अरुणाचल प्रदेश के लिए मेरे पास समय नहीं है।
अब आप बताइए, देश का मंत्री वो तब बनेंगे जब अरुणाचल प्रदेश से चुनाव में वो निर्वाचित होकर के जाएंगे। क्लास 1 से होकर के क्लास 10 तक एग्जाम देना होता है, तब जाके मैट्रिकुलेट पास होता है। सीधा जंपिंग मार के कोई क्लास 10 पास नहीं होता है, सीबीएसई बोर्ड अपेयर नहीं करता है। हर एक चीज थ्रो प्रॉपर चैनल होके जाता है। अरुणाचल प्रदेश के जनता, वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के जनता लोगों का प्यार, आशीर्वाद और अपनापन, समर्पण, जो उसके लिए जो शिद्दत से जो एक मोहब्बत थी, एक चाहत थी, एक कसीस थी उसके लिए कि अपना किरण रिजिजू को हम बनाएंगे, नेता बनाएंगे सोच करके जो मोहब्बत से आप लोगों ने उसको भेजा, तो वहां चल करके हमारे नरेंद्र मोदी जी के, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अरुणाचल के लोगों के भलाई के लिए सोच के उनको यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का पद दिया, उनको अपने बराबरी में दर्जा में बिठाया, अपना मंत्रिमंडल में उसको डाला। उसके बाद में उसकी जो एक अभिमान जाग गई है वो आप लोग देखिए। काम करने वाला बेटा बिना कुछ बोले अपने धरती माता के लिए काम करता है, अपने प्रदेश के माता पिता के लिए काम करता है। अभी मैं पहली बार आ रही हूँ यहाँ, हम बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर पे आ चुके, चीन के बिल्कुल सीमा पर है। तो हमारा रास्ता का कंडीशन देखिए आप लोग, जो कि स्पेशली मिलिट्री बेस कैंप के लिए भी बहुत जरूरी है। रास्ता एक गाड़ी चल सकता है, दूसरा गाड़ी जाने का रास्ता ही नहीं है। दूसरा गाड़ी जब आता है तो साइड करने का वो प्रोविजन ही नहीं है। तो यहाँ पे देश के जवान, मिलिट्री सेना लोग भी ऐसा रास्ता में कैसे करके हमको रेस्क्यू करेंगे? भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे कि कोई देशद्रोही, कोई विरोधी बाहर से अगर आक्रमण कर दे तो हम अपनी जान बचाकर ऐसे रास्ते से कैसे निकलेंगे? उसका सामना कैसे करेंगे हम? पिछले 15 साल से दिल्ली के राजगद्दी पर बैठे हुए हैं, सांसद के गद्दी पर, और पिछले 11 साल से मंत्री बने हुए बैठे हुए। जब कभी भी मीडिया में आते हैं तो ताल ठोक कर बोलते हैं कि मैं चीन के सीमा पर काम कर रहा हूँ, वहां पर काम कर रहा हूँ, यहाँ पर काम कर रहा हूँ, बॉर्डर डेवलपमेंट एरिया प्रोजेक्ट पर मैं पूरा बीएडीपी का फंड भेज रहा हूँ। ये फंड भेजा हुआ काम ऐसा होता है क्या? मुझे कभी मतलब जरूरत नहीं लगा, मुझे लगा कि शायद वो सच्ची बोल रहे, इतना बड़ा व्यक्ति तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकता, वो भी मीडिया में आकर के सीना तान के। तो बीएडीपी का प्रोजेक्ट ये होता है, ये रोड है क्या, ये रोड है क्या, ये कितना लेन का रोड है? यहाँ पे छोटा सा गाड़ी बोलेरो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, बड़ा ट्रक का क्या हाल होगा? तो हम लोग जो जंगल में हम लोग रहने वाले लोग हैं, पहाड़ में रहने वाले लोग हैं, हम लोगों के अंदर में कितनी समस्याएं हैं, कितना प्रॉब्लम्स है। हम हर दिन, हर घड़ी, हर सुबह, हर शाम अपने अपने प्रॉब्लम से उलझते रहते हैं। नेचर का चैलेंजेस है, और ये जो एक हमारा ये जिस ज्योग्राफिकल एरिया में ये जो मुनिगांव बसा हुआ है, ये तो और ज्यादा चैलेंजेस है। हम एक उम्मीद के साथ, एक विश्वास के साथ हर 5 साल के बाद चुनाव में अपने नेता को चुनते हैं कि हमारा जो नेता है वो हमारे लिए खड़ा होगा। हम पे जब कोई भी संकट आएगी तो वो नेता हमारा मतलब बचाव करेगा, हमारा रक्षक बनेगा। लेकिन आज तक अरुणाचल में हो क्या रहा है? एक जमाना था जब दिल्ली में यूपीए का सरकार था, पूरा अरुणाचल कांग्रेस था, यहाँ कोई बीजेपी नहीं थी। जब दिल्ली में यूपीए का सरकार गिर गया, अरुणाचल में भी धीरे धीरे कांग्रेस का सरकार गिरते जा रहा है। आज अरुणाचल की धरती से कांग्रेस का नामो निशान खत्म हो गया। अब हर जगह सिर्फ कमल का फूल बीजेपी दिखने को मिल रहा है, लेकिन चेहरा वही है। पार्टी का नक्शा चेंज हुआ है, पार्टी का फ्लैग चेंज हुआ है, व्यक्ति वही है, इंसान वही है, जिसकी फितरत बिल्कुल सही नहीं है। जिन लोगों को कभी लगता नहीं कि हमको बड़ा काम करना है, सबको यहाँ सिर्फ बिजनेस करना है। स्पेशली आप लोग जैसा जो रिमोट एरिया में यहाँ रहते हैं, हम लोगों का, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, हमारा बहुत बड़ा चैलेंजेस होता है। तो हर चैलेंजेस में हमको सबसे पहले क्या है, छोटा सा हम जिस घर में रहते हैं वो ऐसे भी ये ठंड मौसम का ठंड वाला एरिया है, तो ठंडा ज्यादा लगता है, हमको लकड़ी चाहिए, आग चाहिए, कोयला चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए, कपड़ा जैकेट स्वेटर लेने के लिए पैसा चाहिए, मोजा खरीदने के लिए पैसा चाहिए, टोपी खरीदने के लिए पैसा चाहिए। तो पैसा कहाँ से आएगा? इंसान के मजबूरी का फायदा उठाकर यहाँ सौदा किया जा रहा है। आप और हम जैसे गरीब लोग जब मजबूर हो जाते हैं
हम अपने मजबूरी के चलते सामने हमारे पास कोई विकल्प नहीं रह जाता है, जब कोई ऑप्शन नहीं रह जाती है तो जो सामने आता है, जो हमको जैसा सौदा करता है, हम उसी में हामी भर देता है। आज अरुणाचल में ये हो रहा है, हर इलेक्शन में, हर चुनाव में भारी भरकम नोटों के साथ लोग आ जाते हैं चुनावी मैदान में, नोट बांटना स्टार्ट कर देते हैं, और हम जैसे गरीब लाचार लोगों के पास जब कोई विकल्प नहीं है तो हम वो नोट का टुकड़ा उठा लेते हैं और हम कह देते हैं कि मेरा वोट आपके साथ है। हम कभी ये मुड़कर भी नहीं देखते कि हम गलत फैसला कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। पेट में भूख लगी है, पेट में चूहा दौड़ रहा है, तो हमको कहाँ समझ में आएगा कि वहां दूर में बेकरी में ब्रेड है ना, टोस्ट है ना, ऑमलेट है, क्या है, सामने जो भी मिला होगा बासी रोटी वो उठाकर खाएंगे हम। ये हाल है हमारा। मदर ऑफ द करप्शन इज द रूट कॉज ऑफ द एविल प्रैक्टिस इज कॉल्ड मनी कल्चर। मैं यहाँ आप लोगों के बीच में एक सांसद की प्रत्याशी बनकर जरूर आई हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ, और मेरा मुद्दा हमेशा से यही रहा है कि भ्रष्टाचार को खत्म करना है, भ्रष्टखोर लोगों को सख्त से सख्त सजा देना है। हमारा भारत देश कितना महान देश है, क्या कुछ नहीं दिया हमारे भारत माता ने हमें, लेकिन हमारे भारत माता ने अच्छी अच्छी चीजों के साथ गंदे गंदे बेटों को भी पैदा किया है कि जो बेटा उनके अस्मत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जो बेटा लोग इसी धरती माता के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों को भारत माता ने पैदा करके रखा हुआ है। इसी भारत माता का एक छोटा सा अंग है हमारा ये अरुणाचल प्रदेश। इसी प्रदेश में हम जैसे, आप जैसे अभागन लोग पैदा हुए हैं, हमारे बीच में 4, 5, 10, 15 लोग ऐसे निकले हैं जो केवल सौदागर है। तो आज का डेट में इलेक्शन मतलब फ्री फेयर इलेक्शन रहा ही नहीं, बिल्कुल भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं रहा। इट्स ऑल बिकेम ओनली बिजनेस। यहाँ पे बिजनेस चल रहा है। तो अनटिल एंड अनलेस जब तक ये बिजनेस बंद नहीं होगा, हमारा सिस्टम चेंज कैसे होगा? आपको 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 मुझे, हम जैसे लोगों को अपने छोटे छोटे मतलब जो लालच हमारे जो जरूरत है उनको त्यागना पड़ेगा। त्याग करके आपको हमको फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, हमको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करके 4 कदम आगे आना पड़ेगा। Then only we can think for the betterment of society. Then only we can hope for the future generation. Otherwise there is no option at all. अभी इलेक्शन का समय है। Everybody thinks that during the election time when candidate कोई आना जाना कर रहा है तो लोगों को लगेगा कि हाँ कैंडिडेट के पास में पैसा होता होगा। लेकिन मैं आपका बेटी तोको शीतल कैंडिडेट, मुझे आप लोग एमपी बनाते हो नहीं बनाते हो, दैट्स अनदर इशू। सबसे पहले प्री ब्रेक बात करना जरूरी है। तो मैं आपका बेटी तोको शीतल पहले बता दिया, मेरा पास में कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल गरीब हूँ, खाली हूँ और कुछ भी नहीं हो। 2 जोड़ा कपड़ा भी ढंग का पहनने को नहीं है मेरा पास। सुबह खाने के बाद शाम को क्या खाऊंगी उसका भी पता नहीं है। लेकिन एक हिम्मत है सच को बोलने का, सच्चाई के लिए लड़ने का, चाहे कुछ भी हो, कैसी भी सिचुएशन हो, मैदानी जंग छोड़ के कभी नहीं भागूंगी। मरूंगी तो शहीद हो जाऊंगी, नहीं तो मैं लड़ करके मैदान को जीत करके मैं विजय हासिल करूंगी, लेकिन मैदानी जंग छोड़ के कभी नहीं भागूंगी। वो क्वालिटी मेरे अंदर है। तो आज पूरे अरुणाचल प्रदेश में इन सौदागरों के बीच में एक भी नेता नहीं रहा। तो आज जब पूरा अरुणाचल अंधकार की तरफ डूब रहा है, दब रहा है, आज एक बेटी का जन्म हुआ है। आप इसे किसी भी नाम से पुकार सकते हो। आज एक बेटी का जन्म हुआ है जो अपनी माता अरुणाचल आने, हम लोग इसी भाषा में आने अरुणाचल बोलता है। अरुणाचल माता की रक्षा करने के लिए, अरुणाचल माता की बची हुई इज्जत को, उसकी अस्मिता को बचाने के लिए आपकी बेटी शीतल का जन्म हुआ है। इस बार सांसद बने ना बने, मेरी लीडरशिप यहाँ पे खत्म नहीं होगी। ये तो मेरी शुरुआत है, ये आगाज है केवल। लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ चुनाव में कूदने के लिए, सांसद जीतने के लिए ये आई है। सांसद जीतती हूँ तो मैं अपनी जनता की सेवा करूंगी, अपने समस्याओं पर मैं चर्चा करूंगी भारत के सरकार के साथ में। जो भी पार्टी वहां पे सरकार बनाएगा कल को, मेरी छोटी सी पार्टी जीएसपी पार्टी की अपनी सरकार नहीं बनेगी, ये बात तय है। लेकिन मैं जरूर इस पार्टी में रह करके मैं एक आपका प्रतिनिधि बन करके, आपका चुना हुआ नेता बन करके मैं संसद भवन के अंदर बैठूंगी। जिस किसी पार्टी का भी सरकार होगा, वो सरकार हमारे अरुणाचल प्रदेश के लिए क्या नीति बनाती है, क्या नियम लागू करते हैं, मैं हर एक नीति और नियम पर उनके साथ वहां पर बैठकर चर्चा करूंगी।
ये सेवा मैं अपने प्रदेश के लिए करूंगी। अगर मैं सांसद जीतती हूँ और अगर सांसद नहीं भी जीतती हूँ तो अरुणाचल में बैठकर हर एक जो नेता जो सौदागरी करके घूम रहे हैं, सौदागर नेता, उनके पीछे मेरा ये जीएसपी का टॉर्च लाइट जला जला कर पीछा करती रहूंगी। कौन कहाँ में कितना काला धन छुपा रहा है, कौन कहाँ से कितना निकाल रहा है। शीतल यहाँ खत्म होने वाली चीज नहीं है, अभी बस शीतल की शुरुआत है। आप लोगों ने अरुणाचल का बेटा किरण 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 करके बहुत ज्यादा उसको आसमान पे चढ़ा दिया कि अभी उसकी जो किरण जो है ना, सूरज की किरण जो हीट है, जो तपिश है, वो आप लोगों को जला रहा है। अब इसको शांत करने के लिए एक शीतल की जरूरत है, तो वो शीतल मैं हूँ। इसीलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संख्या यहाँ कितनी है। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि चाहे यहाँ कम जनसंख्या में हो या भारी मात्रा में हो, मेरी बातों को कौन ध्यान से सुन रहा है, मेरी शब्दों को कौन ध्यान से सुन रहा है, उसका ग्रहण कौन कर रहा है, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैं 25,000 के लोगों को भी मैं संबोधित करती हूँ, 2 लाख लोगों को मैदान में संबोधित करती हूँ, तो कभी 5 लोगों को, कभी 15 लोगों को भी संबोधित करती हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संख्या कितनी है, मुझे फर्क इतना पड़ता है कि आप मेरे बातों को कितना सीरियस ले रहे हो। तो मेरा स्पेशली मेरा मोनीगांव सर्कल का आने वाले लोग, आप लोगों को शीतल बेटी का बात समझ में आया ना नहीं आया? अभी तक जो मैंने 40 मिनट बात किया वो समझ में आया? अगर समझ में आया तो बहुत अच्छा बात है, मेरा जो मेहनत है बेकार नहीं गया और बहुत खुशी की बात है। बाकी मैं थोड़ा सा मैं बहुत दूर चली गई थी, भारत माता के साथ मेरा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ना, भारत की बेटी हूँ और भारत देश को माता के नाम से क्यों हम पुकारते हैं, क्योंकि भारत देश भी एक स्त्री है और मैं भी एक स्त्री हूँ, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा कनेक्टेड हूँ। चलो लोकल बात करते हैं। अभी लोकल बात ये है, तो शीतल अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम के साथ जुड़ करके निकला। आप लोगों ने शायद यहाँ पे नेट चलता है कि नहीं चलता है ना, तो आप लोग वीडियो में मुझे देख चुके होंगे, देख चुका है ना, देख चुका है, सुन चुका है। पिछले 2 साल से मैं भले बहुत दूर में थी, लेकिन आप लोगों के हाथ में जब मोबाइल होता है, मोबाइल ऑन करने पर शीतल आ रहा है तो अरे शीतल क्या बोल रहा है, मतलब ऐसा लगता है मानो हर घर में मैं आप सबका मेंबर हूँ ना, क्योंकि हर घर में मैं मौजूद हूँ। अरुणाचल का आज ऐसा आलम है कि बिना शीतल का कोई, अगर मैं 2 मिनट गायब हो जाती हूँ तो फेसबुक व्हाट्सएप में लोग लिखना चालू कर देता है और व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज भेजते हैं, तो शीतल कहाँ मर गया, कहाँ गायब हो गया, अपना अरुणाचली हिंदी में। तो मैं भी उसको जवाब देती हूँ, तो शीतल अभी जिंदा है, अरुणाचल का अंदर में घूम रहा है, पहाड़ टू पहाड़, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट घूम रहा है, अपना माता पिता लोग को मिल रहा है। ये इलेक्शन मुझे एक अवसर प्रदान कर रहा है कि मैं अपना फैमिली मेंबर्स के साथ में विजिट करके घूम रही हूँ। तो इसलिए शीतल का स्टोरी जो है आप लोग का बीच में एक ऑर्फन बुक है, इट्स एन ऑर्फन बुक, नथिंग इज हाइडेन, कुछ छुपा हुआ नहीं है। शीतल आज आप लोग का बीच में आया है, तो शीतल आप लोग को एक पैकेट निमोक देने या एक डिब्बा गोल्डन देने नहीं आया है, उल्टा आप लोग से मांगने आया है। आने लोग, अबो लोग, गुरु लोग, बरमे लोग, बाई लोग, बहन लोग, तो शीतल को आप लोग इस बार मैंडेट कीजिए, अपना बहुमूल्य वोट को देकर के मैंडेट कीजिए, अपना एमपी चुनिए, आपका घर का एमपी बनाइए। कब तक आप लोग नरेंद्र मोदी जी को एमपी बना के गिफ्ट करते रहेगा, कब तक राहुल गांधी को एमपी बना के सोनिया गांधी को गिफ्ट करते रहेगा? इस बार आप अपना पास रखिए ना, क्यों बाहर वाला को देते रहेगा, है कि नहीं? और बाहर वाला को जितना देने से भी वो लोग थैंकफुल होता ही नहीं, एमपी दिया है बोल के आप लोग को मोरम करता है ना, नहीं मालूम है, हम भी तो देते रहता था ना, हम तो नरेंद्र मोदी को 3 बार दिया, किरण रिजिजू जी को ना, अभी इस बार हम सोचे हम खुद रखेगा, नरेंद्र मोदी जी भी खराब नहीं पाना है, पहले से देते आ रहा है, अभी एक बार तो खुद भी खाना भी दूसरा को दे के खत्म करेगा, खुद भूख लगेगा, क्या होगा, खुद भी एक बार तो खाना है ना। तो इस बार 2024 का एमपी को अरुणाचल प्रदेश खुद रखने से ठीक है कि नहीं? आप लोग खुद रखेगा ना, बाहर वाला को फिर देगा। तो चलो इस बार हम लोग खुद रखते हैं। जीएसपी पार्टी एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, इट्स रजिस्टर्ड, बट ये जो है बिल्कुल नया पॉलिटिकल पार्टी है। इस बार 2024 में फर्स्ट टाइम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और इस पार्टी को 2020 में रजिस्टर्ड हुआ था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। उसके बाद से लेकर के ये अभी तक ना किसी विधानसभा में किया है, ना किसी लोकसभा में किया है, अभी फर्स्ट टाइम ये इलेक्शन में जा रहा है।
और मैं इस पार्टी का खुद ही आपका बेटी तपस्वी खुद ही मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ और उसके बाद मैंने इसको एडवोकेट लिखा ठाकुर साहब जी को यहाँ स्टेट प्रेसिडेंट बनाया है। इस पार्टी का कोई माँ नहीं है, बाप नहीं है, भाई नहीं है, बहन नहीं है। इस पार्टी का अगर कोई माँ बाप है तो वो लोग आप लोग हैं। ये हम लोग का अपना रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, इसका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग जैसा गरीब लोगों को अमीर लोग कैसे रिश्ता रखेगा? बीजेपी तो सबसे हाईएस्ट धोनी वाला वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, उसका पास खुद का ही मेंबर इतना ज्यादा है कि उसको मैंने एडजस्ट करने में वो लोग का टाइम नहीं जुड़ रहा है। तो मेरा जैसा तोकोसीतल जैसा वाला कंगाल वाला व्यक्ति को बीजेपी कहां से रिश्ता जोड़ेगा? झूठ मूठ का बोलता है बीजेपी का अलायंस है, बीजेपी का अलायंस होने के लिए पहले हमको एमपी जीतना पड़ेगा ना। पहले हम एक सीट एमपी जीतेगा, बीजेपी का पास में थोड़ा कमती एमपी आएगा तो जाके उसको अगर मेरा जरूरी होगा तो भी वो बोलेगा शीतल चलो अलायंस करेगा बोल के। अगर उसको मेरा जरूरी भी नहीं होगा, अभी वो लोग बोलते हैं आपकी बार मोदी फिर सरकार 400 पार बोल रहा है, 400 मेंबर उधर आ गया तो उसको शीतल का जरूरी नहीं है। अरुणाचल प्रदेश से कौन जीता है कौन हारा है उसको कोई मायने ही नहीं रखता है। शीतल का क्या, उसको किरण का भी जरूरी नहीं होगा वहाँ अगर सच में 400 पार आ गया ना। ऐसे भी हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है एक सिस्टर जो है थोड़ा हम लोग हमेशा अंडर डेवलप वाला जो है ना अलग है। हम लोग का कान नाक आँख लोग भी थोड़ा अलग है। वहाँ का मेनलैंड इंडिया का आदमी लोग लंबा होता है, आँख भी सुंदर होता है, नाक भी बड़ा होता है। हम लोग का आँख चिपटा होता है, नाक भी ऐसे होता है। तो हम लोग का आदमी यहाँ में नॉर्थ ईस्ट में ऐसे भी एमपी सीट बहुत कम है। अरुणाचल में 2 सीट है, ईस्टर्न वेस्टर्न। असम में कुछ सीटें है, बाकी मणिपुर मेघालय मिजोरम त्रिपुरा में तो और भी कम है। तो यहाँ का एमपी लोग का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना वहाँ हमारा यूपी बिहार का एमपी लोग का होता है। तो कौन पूछेगा अरुणाचल का एमपी को? क्या मोरम करके नरेंद्र मोदी जी ने 1-2 बार हमारा जीजाजी किरण जी को यूनियन मिनिस्टर क्या बना दिया। अभी सब लोग बोलता है कि उसको फिर से दोबारा इलेक्ट करना है, फिर से मिनिस्टर मिलेगा। मिनिस्टर सीट को किरण जी के लिए वहाँ रिजर्व पे बोल के लिख के रखा है क्या? वो तो मोदी जी अपना मंत्रिमंडल में कभी भी एनी टाइम रिसप्लिक कर सकता है, कभी भी फेरबदल कर सकता है। वो फिक्स नहीं है, फेविकॉल चिपका के नहीं रखा है। या फिर मेरा जैसा अकेला सिंगल छोटा मोटा पॉलिटिकल पार्टी होने से भी आप लोग आने वो लोग ब्लेसिंग दे के अगर फुल मेजोरिटी का साथ सपोर्ट दे के आप लोग हमको दिल्ली भेजता है इस बार 19 अप्रैल को, तो जाके बाद में पता नहीं कौन तारफ्रोट गवर्नमेंट बनाएगा, बीजेपी बनाएगा, कांग्रेस बनाएगा या एनडीए बनाएगा, इंडिया बनाएगा, कौन बनाएगा? हम लोग जैसा जब सिंगल आदमी जो किसी का घर के लिए काम आ सकता है तो वो लोग हम लोग को पूछेगा। अरे अरुणाचल का एमपी को भी पूछ के देखना पड़ेगा, तब अरुणाचल का एमपी का वैल्यू बढ़ेगा ना। तो अरुणाचल का एमपी भी होलसेल वाला में बीजेपी में दे देगा तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं होगा। हमारे तो अपना स्पेशलिटी बना के रखने के लिए यहाँ से रीजनल एमपी बना के भेजने में क्या खराबी है? रीजनल तो कहीं पर भी नोट फिट हो जाएगा, होलसेल वाला तो होलसेल में ही जाएगा, कुंतल में ही जाएगा। रीजनल तो यूनिक पीस में दिखाई मिलेगा। ये आप लोग समझना है। और खास करके मेरा रिक्वेस्ट है, जातिवादी पॉलिटिक्स नहीं खेलना है, क्लान बेस में पॉलिटिक्स नहीं खेलना है, धर्मों का नाम पे पॉलिटिक्स बिल्कुल भी नहीं खेलना है। यहाँ में कुछ लोग हैं, अभी देखिए सिंस फ्रॉम 2 साल से मैं अकेली हला कर रही हूँ अरुणाचल प्रदेश में। अकेला आप सबका कॉमन पीपल का माइक, ऐसा माइक बन करके, लाउड स्पीकर बन करके मैं अकेला हला कर रही हूँ। सिस्टम का अगेंस्ट में, करप्शन का अगेंस्ट में, पैसा हेरा फेरी होता है। शुरुआत आप लोगों ने देखा होगा, हमारा जो किमिन है, पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में किमिन है, किमिन को बिलगर आसाम बना के हमारा आदरणीय राजनाथ सिंह जी आए थे यहाँ पे उद्घाटन के लिए दिल्ली से। राजनाथ सिंह जी आए थे, किरण रिजिजू साहब मौजूद थे, श्रीमान पेमा खांडू जी प्रेजेंट थे। उन लोग तीनों का प्रेजेंस में अरुणाचल को असम बोल के लिख के बिलगर असम बता के वहाँ इनोग्रेशन करवा दिया। तब से लेकर के मेरा आवाज बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम से निकला है कि हमारा प्रदेश को आप किस लिए असम दिखा रहे हैं। इसका मतलब पेमा खांडू साहब आप क्या असम का चीफ मिनिस्टर है क्या? ऐसा करके तब से बोलना शुरू करके आज तक हम बोल रहे हैं। अरुणाचल में बोल बोल के गला भी खत्म हो जाता है, मुख भी दर्द होता है, कोई सुनता नहीं है। तो गुस्सा आ गया, माथा फिर गया तो पैदल चल दिए। यहाँ से अरुणाचल से दिल्ली तक पदयात्रा कर डाला, पूरा दिल्ली तक पहुंचना था। लखनऊ में मेरा एक प्यारा सा लखनऊ का मेरा बेटा दाढ़ी मूछ वाला निकाल के इतना परेशान किया। उसका बाद में वो ठीक ही बोला, पीछे से वीडियो बनाया तो कोशितल हमको डर के भाग गया। अभी डरना तो पड़ेगा ना, मैं तो एक माता हूँ, एक बेटी हूँ, और मेरे साथ में कुछ इतना बेटों का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी था, तो उन लोगों का जान मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो बेटा लोग वॉमिटिंग कर रहा था, खून निकल रहा था, लूज मोशन हो रहा था, सबको एम्बुलेंस में डाल के दिल्ली गाजियाबाद तक रात को पहुंचा के वहां हॉस्पिटल में एडमिट करा के उन लोगों का ट्रीटमेंट किया।
नहीं तो हम आराम से और 3.5 महीना टाइम लगता लखनऊ से पैदल चलते चलते दिल्ली पहुंचने के लिए, लेकिन एम्बुलेंस ने आखिरी मोमेंट पे जान बचाया बोल के हम 1.5 महीना में दिल्ली पहुंचे। हॉस्पिटल में लेके गया तो डॉक्टर क्या पूछा है पता है? क्या हुआ ये लोग को बोला है? हम बोले पैदल चल चल के हालत खराब हो गया बोले। लेकिन इतना पैदल क्यों चलाया बोले? बोले नहीं, अरुणाचल से हम लोग पैदल आ रहे हैं, तुम लोग का दिमाग ठीक है, सुसाइड करने के लिए और जगह नहीं मिला है पूछा है। तो ये हाल था हम लोग का। इसीलिए अभी आने लोग अब वो लोग आप लोग डिसाइड कीजिए। आप लोग का बहुत ज्यादा टाइम तो हम नहीं लेगा। हम वही बोलता है, जब हम हाला कर रहा था कोई ओपोजिशन था क्या आप लोग का नजर में? मेरा ख्याल से तो कोई भी ओपोजिशन नहीं था। आज लोकसभा वेस्टर्न वेस्ट अरुणाचल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में और भी आदमी लोग बोल रहे हैं 8-9 तो कैंडिडेट का नाम है, बोला वो तो हमको मालूम नहीं। हमको 3 नाम दिखाई दे रहे हैं, तोको सीतल, किरण रिजिजू, नाबम तुकी, ये 3 कैंडिडेट का नाम हमको अच्छा से दिखाई दे रहा है। इसमें से चलिए प्रेजेंट द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ आर्ट एंड साइंस एंड फूड प्रोसेसिंग, ये ऑनरेबल मिनिस्टर जीजाजी किरण जी तो प्रेजेंट है। वो पहले से बीजेपी पार्टी में थे, रूलिंग में थे, तो उनका पार्टी चाहे चोरी करे, बदमाशी करे, कुछ भी करे, वो जब पार्टी के नेता है तो कुछ बोलेंगे नहीं पार्टी के विरुद्ध, उनका तो फिक्स है। लेकिन जब वो नहीं बोल रहे थे अरुणाचल के जनता के लिए, जब क्वेश्चन पेपर बिक्री हुआ, जब इतना ज्यादा पंचायत 5 हेराफेरी हुआ, केम्पा का 5 हेराफेरी हुआ, पावर डिपार्टमेंट का 5 हेराफेरी हुआ, पीएचई डिपार्टमेंट का 5 हेराफेरी हुआ, उस समय में उसको सवाल पूछने के लिए सरकार को कौन सा विपक्षी दल आया था? आप लोग देखा है अरुणाचल में कोई अपोजिशन पार्टी? मैंने तो नहीं देखा। जब कोई विपक्षी दल नहीं आया, मुझे लगा कि अरुणाचल में अभी और कोई ऑपोजिशन है ही नहीं। वन साइडेड ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट चल रहा है, डेमोक्रेसी नाम का कोई चीज ही नहीं है। तब ये बेटी तोको सीतल अकेला खुद को आप सबका हिमायती बनके, आप सबका नेता बनके, आप सबका रिप्रेजेंटेटिव बनके मैं आपके बिहाफ में सरकार से सवाल पूछने में निकली थी। उस समय में ये श्रीमान नाबम तुकी जी मुंह में दही जमाए कहां बैठे थे? आई थिंक ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो कांग्रेस का एक विधायक होते हुए भी, कांग्रेस का प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होते हुए भी वो बीजेपी की सरकार में वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी की चेयरमैन बनकर बैठे हुए थे। तो कहां था उनका वो आज जो बोल रहे कि सेकुलरिज्म को बचाना है, डेमोक्रेसी को बचाना है, तो किरण जी के विरोध में वो आ रहे, बीजेपी के विरोध में आ रहे। इसका कोई लॉजिक बनता है? इलेक्शन से 4 दिन पहले वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन थे बीजेपी की सरकार में, और आज उसी बीजेपी के पार्टी से लड़ने के लिए खड़े हो रहे, बोल रहे। आप लोग खुद थोड़ा हिसाब किताब जोड़ के देखिए। जब मैं अकेला चिल्ला रही थी, जब मैं अकेला लड़ रही थी, कोई मेरे साथ नहीं आया। कोई भी बड़ा भाई, बड़ा पिताजी, कोई भाई, कोई बहन, कोई दीदी सामने आके नहीं बोला कि बेटी शीतल चिंता मत करो, हम आपका साथ है, आप आवाज बुलंद करो, कोई नहीं बोला। आज हम लड़ लड़ के, आज का मेरा ये चुनाव भी मेरा लड़ाई का ही एक पड़ाव है, ये आखिरी पड़ाव है, क्योंकि हम दिल्ली से बोल के आया है। जंतर मंतर में कुल 8 महीना डटकर बैठा, धरना दिया। भारत के, हमारे भारत देश की राष्ट्रपति जी सुश्री हमारी जो अपनी ट्राइबल लेडी है द्रौपदी मुर्मू जी, उनके पास हम मेमोरेंडम बना करके लेकर गए थे। उनके ऑफिस में, राष्ट्रपति भवन में हमने मेमोरेंडम दाखिला किया। उसके बाद में भारत की माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस में, कार्यालय में भी हमने मेमोरेंडम सबमिट किया। अमित शाह जी के ऑफिस में भी मेमोरेंडम सबमिट किया, लेकिन सबने नजरअंदाज किया, किसी ने नहीं सुना। किसी ने हमारी मेमोरेंडम के ऊपर में बातचीत करना भी जरूरी नहीं समझा। वहां 8 महीना डटकर बैठने के बाद मैंने आप लोगों से वीडियो के माध्यम से मैंने क्या कहा कि जो मेमोरेंडम मैंने भारत के सरकार को, प्रशासन को जो मेमोरेंडम मैंने सबमिट किया है, वो मेमोरेंडम का कॉपी लेकर के मैं अरुणाचल की जनता के पास अभी आ रही हूँ, क्योंकि जनता की अदालत से बढ़कर दुनिया का कोई भी अदालत नहीं होता है। तो मैं आप लोगों के हाथ में वो मेमोरेंडम को देने आ रही हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है, 2024 में आप लोग मुझे अपना नेता बनाते हो या नहीं बनाते हो, ये सीधा सवाल मैं आप लोगों से पूछने आई हूँ। अगर आप लोग मुझे बनाते हो तो मैं आप लोगों के लिए काम करूंगी, और नहीं बनाते हो तो आप लोगों की अपनी इच्छा है, मैं उस पर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकती। लेकिन मैं अपनी सच्चाई इतना जरूर रखती हूँ कि काम करने का जुनून, जज्बा और जोश मुझ में फूट फूट कर भरा हुआ है, और उससे भी ऊपर मेरे अंदर इतनी हिम्मत भरी हुई है कि मैं ईमानदार हूँ और मैं सही हूँ, तो मैं किसी भी सिचुएशन का मुकाबला कर सकती हूँ।
अभी मुझसे आप लोग बिल्कुल भी एक पैसा का उम्मीद मत कीजिए। हो सके तो आप लोग उल्टा यहाँ तकलीफ करके बैठने, बर्फीला इलाका पर बैठने पर भी, पत्थर तोड़ के भी अगर दिन में 1000-1200 भी कमाता होगा तो मुझे 100-100 रुपया करके भी उल्टा उठाकर चंदा दीजिए। मैं आप लोगों को मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप 100 रुपया भी देता है तो फुल ऑफ आशीर्वाद का साथ देना चाहिए, एक प्यार का साथ देना है, आशीर्वाद का साथ। अगर 100 रुपया भी देने के लिए नहीं है तो कम से कम एक गिलास पानी पिला के मुझे आशीर्वाद देके भेज दो कि बेटी हम तुम्हारे साथ है, ये आश्वासन देके भेजिए आप लोग। तुम ही हमारे नेता बनोगे, तुम ही हमारे रक्षक बनोगे, ये बोलकर भेजिए। एक बार बेटी को संसद भवन के अंदर भेज के देखिए, उसके बाद में बेटी किस तरह से यहाँ का नशा नक्शा का किस तरीके से मैं अपना तरीके से करती हूँ, सिर्फ मैं एक्शन में करके दिखाऊंगी, मुंह से नहीं बोलूंगी। लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, मीठे मीठे शुगर कोटेड डायलॉग देते हैं, लेकिन काम नहीं करते, लिप सर्विस करते हैं। मैं बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड वाली लेती हूँ, मुझे रिजल्ट ज्यादा पसंद है बेकार के बातचीत से ज्यादा। तो एक बार आप लोग मुझे 19 अप्रैल को वोटिंग करके देखिएगा, मेरे चुनाव चिन्ह टॉर्च लाइट में वोटिंग करके देखिएगा। उसके बाद रिजल्ट कैसे आता है वो आप लोग विद इन ए ईयर आप लोग महसूस करने लगोगे। एक साल के अंदर में, चुनाव के बाद एक साल के अंदर में आप लोग रिजल्ट को, यू पीपल विल फील द डिफरेंस कि आज तक जो नेता कुर्सी में बैठा था उन लोगों का वर्किंग स्टाइल कैसा था और इस बेटी का वर्किंग स्टाइल कैसा है। और वहां जाके संसद भवन में जाके आप लोग तो टीवी में देखता होगा, जब कभी भी पार्लियामेंट सेशन चलता है कितना लोग एक दूसरे को माइक पेका पेकी करते हैं, फाइल पेका पेकी करता है। देखा है ना ऐसा वाला नजारा, देखा है ना आने। आपका बेटी को भेजिए, आपका बेटी को भेजिए, आप पता नहीं बेटी क्या क्या बेचने लगेगा होगा, वो तो समय बताएगा। बस बेच के दिखाइए आप लोग, आप लोगों के हित के लिए, आप लोगों के रक्षा के लिए, आप लोगों के सिक्योरिटी के लिए, आप लोगों के ब्राइटफुल फ्यूचर के लिए। और एज वेल एज अरुणाचल प्रदेश का गवर्नमेंट से प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी के लिए पैसा कहाँ यूज हो रहा है, क्या हो रहा है, भारत सरकार जो फंड भेज रहा है वो कहाँ जा रहा है, उसका प्रॉपर चेक एंड बैलेंस, उसका प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी के लिए एक एमपी को सक्रिय होना तो जरूरी है। यहाँ तो तीनों का तीनों एमपी निकम्मा निकला, 2 लोकसभा 1 राज्यसभा, सब सरकार के चट्टे बट्टे। तो इस बार सरकार जनता आप खुद बनाइए, मैं कह रही हूँ सरकार के दबाव में मत जाइए, अपना दबाव सरकार पे रखिए और अपना नेता खुद चुनिए, निष्पक्ष रूप से चुनिए और अपना विवेक का इस्तेमाल करके चुनिए। चयन करने का पूरा अधिकार आपको है, चुनने का आपके अंदर फ्रीडम है। आप किसको चुनते हो नहीं चुनते हो ये मैं आप पर छोड़ती हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से रिक्वेस्ट यही पर रखती हूँ कि अगर पहले जो मैं बता रही हूँ 3 लोगों का चेहरा देखने के बाद एक बार मुझे जरूर याद कीजिएगा और अपनी दुआओं में, अगर आप मुझे वोट नहीं भी देने जा रहे हो या मेरे विरोधी को एक वोट डालने भी जा रहे हो तो प्रार्थना में मुझे जरूर याद कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।